اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات، فوجی ہیڈکوارٹر سمیت 8 مقامات پر فضائی حملے۔ مسلح افواج، پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور 6 سائنسدان شہید۔ ایرانی آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی، اسلامی آزاد یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر محمد مہدی تہرانچی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور احمد رضا شہید۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کے اعلیٰ مشیر علی شمخانی بھی اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے۔ ایران کی نترنز جوہری تنصیب کے قریب متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تہران، کرمانشاہ اور خرم آباد سمیت مختلف شہروں میں بھی زوردار دھماکے۔ کئی رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 5 افراد شہید، خواتین اور بچوں سمیت 50 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی جارحیت پر ایران کا بھرپور جوابی وار۔ سیونی ریاست پر 100 سے زائد ڈرون سے حملہ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق چند گھنٹوں میں ایران کی طرف سے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی جانب آئے۔ اگلے کچھ گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیرون ملک جانے کی اطلاعات۔ ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کے خدشے پر اسرائیل میں ہائی الرٹ، ہنگامی حالت نافذ، شہریوں کو بم شیلٹرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا، اس میں شک نہیں کہ اسے سزا ضرور ملے گی۔ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خبردار کر دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا، اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ آیت اللہ خامنئی کی کئی کمانڈرز اور سائنسدانوں کے شہید ہونے کی تصدیق۔ کہا، ان کمانڈرز اور سائنسدانوں کے جانشین اپنے فرائض انجام دے کر مشن جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایران کے ساتھ جنگ کا آغاز کر کے اسرائیل شیر کی دم سے کھیل رہا ہے۔ صہیونی حکومت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ ایران اسرائیلی حکومت سے اپنے ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لے گا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تنصیبات سے جوہری تابکاری سے متعلق ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں، ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایرانی جوہری انفراسٹرکچر، بیلسٹک میزائل فیکٹریز اور دیگر فوجی اہداف کو نقصان پہنچانا ہے۔ جتنے دن بھی درکار ہوں گے یہ آپریشن جاری رہے گا۔ ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹنز نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کیا، 1.5 سال میں ایرانی پراکسیز کا صفایا کر دیا، اب ایران کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملے میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ 5 مرحلوں میں ایران کے 8 مقامات پر حملے کیے گئے۔ دارالحکومت تہران اور اطراف کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ امیر حبیب اللہ سیاری ایرانی مسلح افواج کے قائم مقام سربراہ مقرر۔ احمد واحدی پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر مقرر۔ ایران کا اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے نمائندے ابراہیم رضائی کہتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا کہ دشمن نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی، ایران بھرپور جواب دے گا۔ اسرائیل نے یہ حملے امریکہ کی مدد سے کیے، اب دشمن ایران کے جواب کا انتظار کرے۔ اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس، ایران کی جانب سے اہم فیصلے متوقع۔ ایرانی میڈیا کی فوجی ہیڈکوارٹرز پر حملوں کی تصدیق۔ وزارت داخلہ کی شہریوں کو پرامن رہنے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اپیل۔ ایرانی حکام کے مطابق تیل کی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ امریکہ نے ایران پر حملے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، ضرورت پڑنے پر اسرائیل کا دفاع کرنے کا عزم۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملے کا علم تھا، تاہم حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہو سکتا۔ ہم پر امید ہے کہ ایران مذاکرات کی طرف آئے گا۔ اگر ایران جوابی کارروائی کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی، ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں۔ ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ اسرائیل نے ہم سے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کے لیے ضروری تھی۔ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ نے امریکی افواج کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ ہم اپنے علاقائی اتحادیوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔
पाकिस्तान की इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, ईरान के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार, ईरान पर हमला गैर कानूनी और बिला जवाज और ईरानी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइली इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत करने और जारे मुल्क को जवाबदेह बनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और खित्ते को मज़ीद कशीदगी की तरफ ना धकेलें। ईरान और इसराइल गहरे तनाज़े की तरफ बढ़ने से गुरेज करें और ऐसी सूरत हाल पैदा न करें जिसका खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मशरिक़ वस्ता पहले ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ओमान ने इसराइल को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और जापान की भी मजम्मत। चीन का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का भी इसराइल के हमलों पर इजहार तशवीश। फ़रीक़ैन से फौरी तौर पर पीछे हटने और कशीदगी कम करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी बोंग ने कहा कि इसराइली इक़दाम खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकता है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और कशीदगी मज़ीद बढ़ाने से गुरेज करें। ट्रंप की फिर मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश। पाक भारत जंग रुकवाने की बात भी दोहरा दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार हूँ। दोनों ममालिक से कहा है कि कश्मीर पर दुश्मनी बहुत तवील हो गई, अब तिजारत की बुनियाद पर ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। मैंने जौहरी जंग तिजारत से रुकवाई, कोई ये नहीं कर सकता। दोनों ममालिक कई साल से लड़ रहे हैं। उनसे कहा कि मजीद कितना अरसा लड़ोगे। दोनों ममालिक के पास बड़ी तादाद में जौहरी हथियार हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा है जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, इसराइल के काबिल नफरत इक़दाम ने आलमी क़वानीन की बुनियादों को हिला कर रख दिया। ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। हिंद काबीना ने आइंदा माली साल के लिए 3,451.87 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का प्री बजट इजलास। मुराद अली शाह ने कहा बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी और कौमी मफादात को तरजीह दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज दोपहर 3 बजे सिंध असेंबली में बजट पेश करेंगे। बजट में 3,856 तरक्याती स्कीमें शामिल, 566 नई स्कीम्स होंगी। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 55 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। MNAs और MPAs के तरक्याती फंड्स के लिए 45 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का 2070 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती और मुशीर खजाना की बजट हिकमत अमली पर मुशावरत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 195 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। NFC अवार्ड के तहत 1148 अरब रुपए, लोकल गवर्नमेंट के लिए 45 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे। जमशुदा अजला के ADP के लिए 33 अरब रखने की तजवीज़। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं कि अगर नया NFC अवार्ड दिया जाता तो सूबे को 150 से 200 अरब रुपए इजाफी हासिल हो सकते थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं कि बजट जैसे अहम मामले पर बानी चेयरमैन से मुशावरत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को अपने कायद से मुलाकात से रोकना बदनीयती की बदतरीन मिसाल है। ये रवैया न सिर्फ आइन की रूह के मुनाफी है बल्कि जमहूरियत की नफी भी है। जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में अलीमा और अज़मा खान की अबूरी जमानतें मंजूर। ATC लाहौर के जज का वकला के तर्ज अमल पर इज़हार बरहमी। रिमार्क्स दिए अब जानबूझकर बैल लंबी कर रहे हैं, अदालत में पेश नहीं होते। अगर कोर्ट में आना पसंद नहीं तो पुलिस के सामने कैसे जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की जमानत में भी यही कुछ किया गया। 8 माह बेल चलाई गई और आखिरकार अदम पैरवी पर खारिज करना पड़ी। ऐसा रवैया अदालतों की साख को नुकसान पहुंचाता है। साल साल जमानतें चलाकर अदालतों का नाम खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी नजरियाती धड़ों में तकसीम होना शुरू हो गई। पार्टी के सदर BJP नड्डा की मुद्दत सदारत खत्म होने के करीब। BJP का अपनी क़यादत को जनूबी भारत से लाने पर गौर। मरकजी वजीर J किशन रेड्डी और महिला मोर्चा की सदर रोनाथी श्रीनिवासन मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं। नई क़यादत की तलाश ने BJP के अंदरूनी इख्तिलाफात को नुमाया कर दिया। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों से भारत की गिरती मईशत के सबब नई गाड़ियों की फरोख्त में बड़ी कमी हुई है।
महंगाई, बुलंद शरह सूद और रोजगार के गैर यकीनी हालात के सबब मिडिल क्लास बड़ी खरीदारियों से पीछे हट चुकी। मोदी हुकूमत की मेड इन इंडिया पॉलिसी शदीद मुश्किलात का शिकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ तशवीशनाक बल्कि भारत की मौजूदा मुआशी हिकमत अमली पर भी सवालिया निशान है। बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने शेख हसीना के करीबी साथी और साबिक बांग्लादेशी वजीर सैफुज्जमान चौधरी के 11 मिलियन पाउंड मालियत के असासे मुंजमद कर दिए। सैफुज्जमान पर बांग्लादेशी अवाम दौलत को बैरून मुल्क मुंतकिल करने और लग्जरी तर्ज जिंदगी अपनाने के इल्जामात हैं। 350 मजीद असासों की तहकीकात जारी। अल जजीरा की रिपोर्ट और बांग्लादेशी अवाम के रद्द अमल ने शेख हसीना की हुकूमत की करप्शन पर मबनी पॉलिसियों को दुनिया के सामने ला दिया। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर मौजूद, जबकि WTI खाम तेल के $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1,24,000 और 23 के बाद 1,22,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,21,917 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। OIC का इजलास बुलाकर मुतफिका लाएअमल बनाने की अपील। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने इसराइल का ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, इसराइल पूरी दुनिया के अमन से खेल रहा है। हमला आलमी अमन के लिए खतरा बन गया। सऊदी अरब का मौक़िफ़ उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी है। ईरान को आलमी कवानीन के मुताबिक अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमली तौर पर मैदान में आकर लाड़काना से है। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। नौशहर फेरोज में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। शहरी गर्मी से निढाल। पंजाब के बेशतर अजला में आज शाम से 16 जून तक आंधी झक्कड़ चलने और बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जेहलम, गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। PTMA के ज़रिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बालाई सिंध के तमाम अजला में भी आंधी और बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसा। हमले समेत 241 मुसाफिर हलाक। जमीन पर 75 डॉक्टर्स की हलाकतों से मजमूई अमवात 300 हो गई। एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा टेक ऑफ के 1 मिनट बाद डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा। मुसाफिर विश्वास नामी भारतीय नयाद बरतानवी शहरी ने तैयारे में खराबी महसूस होने पर इमरजेंसी गेट से छलांग लगा दी। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। बच जाने वाले मुसाफिर का कहना था कि उड़ान भरते ही 30 सेकंड बाद महसूस हुआ तैयारे में कुछ खराबी है। तैयारे की एक खातून मुसाफिर भी मौजूदा तौर पर बच गई। ताखीर से पहुंचने के बायस जहाज पर सवार न हो सकी। खातून का शौहर तैयारे में सवार था। अमरीकी दबाव मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। जनरल असम्बली का गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान करारदाद पेश और इसके हक में वोट देने वाले ममालिक में शामिल था। करारदाद के हक में 149 वोट आए। मुखालफत में 12 वोट पड़े। राय शुमारी में 19 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया।